Hello everyone. Today we are going to revise the fundamental unit of life, class 9 science topic. Now first of all we revise the short question answers. Okay, now the first question, why are lysosomes known as suicidal bag of a cell? We know that lysosome is known as the suicidal bag, but why they are known as the suicidal bag of a cell? Lysosomes are known as suicidal bag because when cell gets damaged during the disturbance in cellular metabolism, lysosome may burst and the digestive enzyme thus digest their own cell. So this is the answer कि why lysosomes are known as the suicidal bag. तो when cells are damaged, okay, cells damage कब होगी? During the disturbance in cellular metabolism. तो at that time कि जो lysosomes है वो क्या करेंगे? Digestive enzymes release करेंगे and these digestive enzymes वो क्या करेंगे? Damaged cells को destroy करेंगे. तो that's why lysosome are known as the suicidal bag. Now next question, do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. Okay, so now our chapter is the fundamental unit of life. So this is related कि a cell is a building unit of an organism. अगर है तो how? तो I agree. तो first of all we know that if yes, we know कि the cell is a fundamental unit of life. तो what is the answer? Answer yes में जाएगा. I agree with the statement that a cell is a building block of an organism. This is true because all living organisms are made up of cell and cell is the smallest independent unit of a living being. That's why we can say that a cell is a building unit of an organism because when we talk about the unicellular organism, the unicellular organism are made up of one type of cell and they do their all activity by this cell. So that's why the cell is a smallest independent unit of living being. Okay, now next, why does the skin of your finger shrink when you wash clothes for a long time? Okay, तो जब हम कई बार देखे होंगे जब हम क्लॉथ्स को वॉश करते हैं तो हमारे हाथ श्रिंक्स हो जाते हैं. तो हमारे हाथ श्रिंक क्यों होते हैं? तो व्हाट इज द रीजन? द सोप सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड. सोप इज वेरी हार्म. ओके, तो वो कैसा होता है? इज वेरी कंसंट्रेटेड. hypertonic solution, so water moves out of your finger cell by osmosis. Okay, we know that what happen in the osmosis. Osmosis में क्या होता है? वाटर मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. और जो ये सोप सॉल्यूशन है वो कैसा है? कंसंट्रेटेड है. तो उसके अंदर क्या करेगा? जो वाटर मूव्स आउट योर फिंगर सेल बाय ऑस्मोसिस. जो वाटर है हमारे फिंगर सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या करेगा? मूव करेगा बाहर की साइड में. तो दैट्स वाई जो हमारी फिंगर्स है वो कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है. दैट्स वाई कि जो वाटर है वो कहां मूव कर जाएगा? आउटसाइड द बॉडी. कि वाटर फिंगर से कहां निकल जाएगा? फिंगर सेल से कहां बाहर निकल जाएगा? एनवायरमेंट में. तो दैट्स वाई कि जो फिंगर्स है वो कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, why is endocytosis found in animals only? Okay, endocytosis, what is the meaning of endocytosis? एंडोसाइटोसिस का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स कि एंडोसाइटोसिस की कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, उसको हम क्या करते हैं? उसको सेल क्या करेगी? एनगल्प करेगी और उसके बाद उसको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस. तो व्हाई दिस प्रोसेस इज फाउंड इन एनिमल्स ओनली? एनिमल्स में ही ये क्यों प्रेजेंट होता है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस इट मीन्स कि एक्सोसाइटोसिस की मतलब वो बाहर की तरफ सेल की जो डिस्ट्रॉय सेल ने जो भी फॉरेन पार्टिकल है
उसको डिस्ट्रॉय करके उसको सेल से बाहर निकाल दिया, तो दिस इज द एक्सोसाइटोसिस। और सेल उसको अंदर लेके डिस्ट्रॉय करी, तो दिस इज प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। वी नो दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल कहां प्रेजेंट रहती है? प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल में क्या होगी? सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ड्यू टू दिस movement of substance inside the cell is easier in animals than in plants. Okay, because cell wall is absent in plants, that's why कि जो movement of substance वो क्या हो जाएगा? easy हो जाएगा for the animals. animals के लिए when we compare to plants, अगर हम plants से compare करेंगे तो plants में cell wall present है, that's why कि उसके अंदर जो substance का movement है वो क्या होगा? अगर हम एनिमल्स के कंपेयर करें तो वो थोड़ा टफ होगा, और एनिमल्स में कैसा होता है? इजी होता है। तो ड्यू टू दिस एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली। तो एनिमल्स में क्या, तो व्हाट इज द रीजन कि एंडोसाइटोसिस प्रेजेंट इन एनिमल्स? तो दिस इज द रीजन कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। सेल वॉल एनिमल्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है। दैट ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज इजियर व्हेन वी कंपेयर टू द प्लांट। तो ड्यू टू दिस एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली। और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसलिए वहां एंडोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं होगा। कहां होगा? ओनली इन एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन टेक concentrated solution of salt. After some time he starts vomiting. What is the phenomena responsible for such situation? Explain. Okay, तो क्या एक पर्सन ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट का क्या यूज में लिया है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और फिर उसको क्या स्टार्ट हो गई है? वॉमिटिंग। तो व्हाट इज द रीजन? Swallowing a concentrated solution of salt result in exoosmosis from cells of the alimentary canal. Due to this, dehydration occurs in the person. As a result, the person starts vomiting. तो what is the reason? कि जो salt solution है in exoosmosis होता है due to the salt solution, exoosmosis from the cell of the alimentary कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस, यानी वो क्या करेगा? एग्जिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो ड्यू टू दिस डिहाइड्रेशन अकर, डिहाइड्रेशन होता है, और उससे क्या होता है? एज अ रिजल्ट द पर्सन स्टार्ट वॉमिटिंग। और सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है? स्वॉलिंग अ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उससे क्या हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रहा है? एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, और ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस तो वो किसके थ्रू निकल रहा है? एज अ वॉमिटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम एनी सेल ऑर्गेनेल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो अब इसमें ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। नॉन मेम्ब्रेनस, इट मीन्स द राइजोसोम। What is the answer? Answer is ribosome. This is a cell organelle which is non-membranous organ. Okay, ये कैसा है? Non-membranous organ है। Okay, now next, we eat food composed of all the nutrient like carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals and water. After digestion, these are absorbed in the form of glucose, amino acids, fatty acid, glycerol, etc. What mechanism are involved in the absorption of digest food and water? We know that when we study about the digestive system, so all our big molecules convert into the simpler molecules. Carbohydrate convert into the glucose, proteins convert into the amino acids, fats are convert into the fatty acid. So all big molecules are convert into the smaller molecule in the digestive system. But what is the mechanism are involved in the absorption of digested food and water? So what is the mechanism? Diffusion and osmosis. By the diffusion and osmosis, जो digestive system है
उसके अंदर जो फूड एंड वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस मैकेनिज्म, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो दिस इज द प्रोसेस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड वाटर. नाउ नेक्स्ट, if you are provided with some vegetables to cook, you generally add salt into the vegetables during cooking process. After adding salt, vegetable release water. What mechanism is responsible for this? Okay, when we cook food, okay, we add some salt. After that, when we add some salt, we observe that some water is released. Okay, so why, what is the reason कि water is released? The water is released due to the exoosmosis. Okay, so what is the reason कि when we add some salt, okay, तो जब हमने salt add किया है तो जो water release हो रहा है, what is the reason कि जो water release हो रहा है उसका क्या reason है? The reason is exoosmosis. During exoosmosis the water is released. Okay, now next, if cell of onion peel and RBC are separately kept in hypotonic solution, what among of the following will take place? Explain the reason for your answer. A, both the cell will swell. B, RBC will be burst easily while cell of onion peel will resist the bursting to some extent. C, A and B both are correct. D, RBC and onion peel cell will behave similarly. So what is our solution? The solution is hypotonic solution. तो हमारा solution कौन सा है? Hypotonic solution. Hypotonic solution में क्या है कि both the cell will swell. क्या होगी? दोनों cell swell होगी या फिर RBC will burst easily while cell of onion peel with resist the bursting to some extent. So what is the answer? The answer is C. ओके, तो सी क्या है कि जो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है. बिकॉज व्हेन सराउंडिंग मीडियम इज हाइपोटोनिक, मीडियम कैसे है हमारा? हाइपोटोनिक, तो वाटर मूव्स इनटू द सेल. वाटर कहां मूव करेगा? इनटू द सेल. दिस विल रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ द सेल. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मूव कहां कर रहा है? इनसाइड द सेल. ओके, जब वो सेल के अंदर मूव कर रहा है तो व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट द स्वेलिंग ऑफ द सेल. ओके, आरबीसी डू नॉट हैव सेल वॉल एंड हेंस दे विल इजीली burst. Okay, but when we talk about the presence of cell wall in the cells of onion peel will prevent their rusting. Okay, so what is the reason कि when we take onion peel and RBC in the hypotonic solution, so we know that what happen in the hypotonic solution. So in the hypotonic solution water moves inside the cell. Okay, तो जब वो सेल के अंदर मूव कर रहा है तो सेल इज swell. Okay, what happen? Cell क्या हो जाएगी? Swell. Both RBC and onion peel, both cells are swell. But RBC do not have cell wall. That's why it can easily burst. But onion peel have a cell wall. That's why ये क्या होगा? Burst नहीं होगा. तो what is the answer? The answer हमारा क्या होगा? C. दोनों ही possibility है. Okay, now next. Bacteria do not have chloroplast, but some bacteria are photoautotrophic in nature and perform photosynthesis. Which part of bacteria cell perform this? Okay, कि we know that कि bacteria में क्या नहीं है? Chloroplast नहीं है, but we know कि for the photosynthesis chloroplast is very important. Okay, plants में क्या present है? Chloroplast present है. Due to the chloroplast they can perform photosynthesis process. Plant में क्या present होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. बट बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. बैक्टीरिया में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है. तो हाउ दे आर ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक.
व्हाट इज द रीजन कि वो बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं? तो व्हाट इज द रीजन? सम स्मॉल वेसल्स विच आर एसोसिएट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन सच बैक्टीरिया. ओके, स्मॉल वेसल्स, ओके, क्या प्रेजेंट है? कुछ बैक्टीरिया में स्मॉल वेसल्स प्रेजेंट है जो क्या करेंगी? दीज वेसल्स कंटेन पिगमेंट विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड. ओके, तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट नहीं है, बट व्हाट इज द रीजन? इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस की, जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है. तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज स्मॉल वेसल्स की विच इज प्रेजेंट इनटू द बैक्टीरिया. ये स्मॉल वेसल्स क्या करती हैं कि ये पिगमेंट विच कैन ट्रैप, इसके अंदर जो ये स्मॉल वेसल्स है इसमें क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है जो क्या करेगा? सोलर एनर्जी को क्या करेगा? ट्रैप करेगा. और दिस सोलर एनर्जी प्रोड्यूस फूड. वो ही सोलर एनर्जी किसमें हेल्प कर रही है? फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है. दैट्स व्हाई सम बैक्टीरिया परफॉर्म लाइक अ फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. इसलिए कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम ए एंड बी. स्मूथ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें से स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी लाइसोसोम, C nucleoid, D food vacuoles, chromatin material and nucleus. Okay, now in column B, amoeba, nucleus, bacteria, detoxification and suicidal bag. So first, what is the answer? Smooth endoplasmic reticulum. What is the answer? The answer is detoxification. कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें कर रही है? डिटॉक्सिफिकेशन में आती है. लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या कहलाते हैं? सुसाइडल बैग. न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का क्या आंसर है? बैक्टीरिया. ओके, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है? अमीबा में. ओके, क्रोमेटिन मटेरियल्स एंड न्यूक्लियस, क्रोमेटिन मटेरियल्स किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में. तो व्हाट इज द आंसर? न्यूक्लियस. ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन. लाइसोसोम कैसे शो करता है? सुसाइडल बैग की जैसे. न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियोइड है उसका क्या है? बैक्टीरिया. और फूड वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट रहती है? अमीबा में प्रेजेंट रहती है. और क्रोमेटिन मटेरियल कहां प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं. तो दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, नाउ नेक्स्ट, write the name of different plant part in which chromoplast, chloroplast and leucoplast are present. These are the type of plastids. Okay, we know हमने जो लिविंग इसमें अंदर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड पढ़ा था उसके अंदर इट इज डिवाइडेड इनटू 3, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. तो write the name of different plant parts which chromoplast, chloroplast and leucoplast are present. तो first flower and fruit. ओके, तो फ्लावर एंड फ्रूट में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट. लीव्स ऑफ द प्लांट. ओके, हमें क्या बताना है? प्लांट पार्ट्स बताने. ओके, तो अगर हम प्लांट पार्ट्स में फ्लावर और फ्रूट की बात करें तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट लीव्स ऑफ द प्लांट, अगर हम प्लांट की लीव्स की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट. और व्हेन वी टॉक अबाउट द रूट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हम रूट की बात करें तो वहां की पे क्या प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट. ओके, ओके, नेम द ऑर्गेनल्स विच शो द एनालॉगी रिटर्न एज अंडर. ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल, जो ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल की जैसे वर्क करती है सेल के अंदर. तो व्हाट इज द आंसर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है कि एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. तो जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर द वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स. ओके, ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स है. विच नोन एज द ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल. तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ पावर हाउस ऑफ द सेल, which is known as the powerhouse of the cell. So this is the mitochondria. Now next, which is known as the packaging and dispatching unit of the
cell, packaging and dispatching unit of the cell. So this is the Golgi body. Now digestive bag of the cell, this is the lysosome. There are another name. First name is suicidal bag of the cell, the other name is digestive bag of the cell. Both are similar. When we अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि which cell organelle is known as the suicidal bag of the cell, तो आंसर इज lysosome. And which cell organelle is the known as the digestive bag of the cell, the answer is lysosome. Storage sac of the cell, स्टोरेज सैक कौन सा होता है? वैक्यूल. दिस इज नोन एज द स्टोरेज ऑफ द सेल. किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट. कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, न्यूक्लियस. ओके, तो दीज आर द वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स. हाउ इज बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम एन ओनियन पील सेल? तो व्हाट इज द आंसर? कि वी नो दैट bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, but onion peel is made up of cellulose. Okay, this is the difference between bacterial cell and onion peel cell. तो bacterial cell में क्या present है? सेल वॉल जो प्रेजेंट है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन. बट ओनियन पील के अंदर किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज. नाउ नेक्स्ट, इन बैक्टीरियल सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट onion peel में nucleus is present. Okay, now when we talk about the vacuole, the vacuole is absent in the bacterial cell, but vacuole is present into the onion peel. These are the prokaryotic cells. Bacterial cells are known as the prokaryotic cell, but onion peel are known as the eukaryotic cell. Now next, how do substance like carbon dioxide CO2 and water H2O move in and out of the cell? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट कैसे होता है सेल के अंदर? तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स थ्रू डिफ्यूजन व्हाइल वाटर मूव्स थ्रू द ऑस्मोसिस. ओके, तो दिस इज द व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इसके अंदर, और ऑस्मोसिस एक्सचेंज ऑफ वाटर. तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू मूव कर रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और वाटर किस प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा है? द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा मेक्स स्यूडोपोडिया. दिस इज अ सूडोपोडिया. एक ऑर्गेनेल होता है, मतलब सूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ड्यू टू दिस सूडोपोडिया टू सराउंडेड ऑफ फूड पार्टिकल्स, इट देन इंजेस्ट the food particles along with a drop of water and then forms food vacuole. This process of obtaining food by amoeba is called endocytosis. कि like this is a food vacuole. Okay, ये food vacuole है and this is amoeba. तो ये क्या करेगा? amoeba make a pseudopodia. This is structure like a सूडोपोडिया, कि ये सूडोपोडिया के जैसे स्ट्रक्चर होगा. इसके थ्रू ये फूड पार्टिकल को क्या करेगा? इनटेक करेगा. तो अमीबा मेक सूडोपोडिया टू सराउंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स. फूड पार्टिकल्स के चारों ओर क्या करेगा? सूडोपोडिया फॉर्म करेगा एंड देन इंजेस्ट द फूड पार्टिकल्स अलोंग विद ड्रॉप ऑफ वाटर. वाटर के अंदर जो फूड पड़ा है उसको वो क्या करेगा? इंजेक्ट कर लेगा विथ वाटर ड्रॉपलेट्स. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. तो एंडोसाइटोसिस इट मींस कि उसने क्या करा है? अंदर की तरफ मूव किया है. फूड पार्टिकल ने कहा मूव किया? इनसाइड द बॉडी. तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस. ये प्रोसेस कैसे होगा? एंडोसाइटोसिस. ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.